Yes, in this session we are going to study the restoring division algorithm. This is the restoring division algorithm. The first block we are going to start with the program. Here initialization of the variables, that is accumulator, m is a divisor, q is the dividend, n is the count. Then we have to perform the left shift operation of c is the carry, accumulator, and q. What is q? Q is a dividend. Okay, then c into a, that carry into accumulator, content of carry and content of accumulator is equals to these contents minus m. What is m? M is a divisor. Okay, these three steps are same every time. In every cycle what we have to do, we have to left shift this content of carry, accumulator, and q, and then perform the subtraction of ca is equals to ca minus of m. Then we have to check for the condition whether the carry is generated or not. If the carry is generated, yes, then we have to give q0 is equals to 0. What is q0? We know that q is a dividend and q0 is the least significant bit of the dividend. Okay, this is the least significant bit. Then if carry is generated, then q0 is equals to 0, and one more operation we have to perform, that is ca is equals to ca plus of m. What is ca? Carry, content of carry and accumulator, content of carry and accumulator, plus m. What is m? M is a divisor. Okay, and when carry is not generated, then we have to put q0 is equals to 1. What is q0? Least significant bit of dividend. Okay, then after performing these two operations, either it will be yes or no, carry will be generated or not generated, then we have to place the value of q0 as 0 and 1. Then we have to go for this condition, that is count equals to count minus 1. This count is nothing but the number of cycles we are going to perform, the number of times we have to execute this statement, sorry, this condition. And then when the count is equals to 0, then we have to exit with the program. When the count is not equals to 0, again we have to repeat the same cycle. This is the restoring division algorithm. Note down the algorithm so that while solving a problem, while solving a question numerical based on this, it will be more clear to you how to solve it. Okay, we are taking two numbers. Suppose we have to divide 17 by 3. 17 by 3, this operation we have to perform, 17 by 3. Then this 17 is nothing but q. We know that q is the dividend and m is the divisor, so this is m. 17 divided by m, that we have to perform q by m. Okay, what is the value of q? 17. 17 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 0 0 0 1, as we have 1 2 4 8 16, so 16 plus 1 is 17. So this is the binary equivalent of q, that is 17. M representation of m is 1 1, that is a 2-bit representation for this m, but we know here the q is of 1 2 3 4 5 bit, that's why we'll make it m also we are making it as a 5 bit. 1 2 3 4 5, we are adding zeros in the MSB. Okay, so this is the value of q and this is the value of m. Now as we have seen in the algorithm, accumulator is initially 0, so the value of accumulator is 0. The content of accumulator is initially 0. Then the value of accumulator is of, here the q is of 5 bit, m is of 5 bit, that's why accumulator is also having a 5 bit, a0 a1 a2 a3 a4, so all are initialized to 0. Okay, what is the value of m? The value of m is 0 0 0 1 1. Okay, and while we are performing the operation here, you can see after performing the left shift we have to perform ca is equals to ca minus m. Okay, so ca, content of c and a, content of c is a 1 bit, content of a is of 5 bit, so total 6 bits are there. This 5 plus 1, 6 bits are there, that's why we are making m also a 6 bit, so we are making m also 6 bit.
Here m we know it is of 1 1, that is 3. So we have to add 4 more zeros, 1 2 3 4 to make it 6 bit. This is the value of m. Okay, now we have to find out the value of minus m. How to find out the value of minus m? By taking its 2's complement. 2's complement of m is nothing but minus m. ठीक है, 2's complement कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले m का 1's complement लेंगे. इसका 1's complement क्या रहेगा? इन्वर्ट करेंगे, जो जीरोज रहेंगे उसको 1 से एंड 1 को 0 से. सो 1 1 1 1 0 0. दिस इज द 2's complement ऑफ 1's complement ऑफ m. इसका 2's complement क्या रहेगा? प्लस 1. 1's complemented फॉर्म में 1 ऐड करेंगे तो ये इसका 2's complement हो जाएगा. दैट इज 1 0 1 1 1 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस m. Okay, remember these two values, m and minus m. Okay, this is m and this is minus m. That will keep as it is. Okay, then insert the value of q. What is the value of q? 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1. This is the value of m. Now see, what is the first operation? Left shift of C, A and Q. C, A and Q, C, A and Q के कंटेंट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे. लेफ्ट शिफ्ट मीन्स ये बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. इट विल बिकम 1 0 0 0. दिस वन विल बी शिफ्टेड हियर एज 1. इट विल बिकम 0 0 0 0 एंड दिस 0 इज शिफ्टेड हियर एज 0. एंड इसमें का जो शिफ्ट रहेगा, इसमें का जो 0 रहेगा वो रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा. ठीक है, हमने लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया. लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन से सारे बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गए. लास्ट में कैरी के जो कंटेंट थे वो डिस्कार्ड हो गए, वो रिमूव हो गए और यहाँ पे एक स्पेस बन गया है Q0 का. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है एक्यूमुलेटर, कैरी एंड Q का. देन सी ए इज इक्वस टू सी ए माइनस ऑफ एम. सी ए इज इक्वस टू सी ए माइनस ऑफ एम. सी ए का वैल्यू कितना है? कंटेंट ऑफ कैरी एंड एक्यूमुलेटर, that is 0 and 1 2 3 4 1 5. ओके, 0 0 0 0 1 एंड 0. ये सी ए के कंटेंट्स है. माइनस एम का वैल्यू हमको पता है 1 1 1 1 0 1. माइनस एम का वैल्यू हमको पता है एट 1 1 1 1 0 1. परफॉर्म द बाइनरी एडिशन. 1 + 1 0, कैरी इज जनरेटेड. इट इज 1 1. 1 + 1 0, कैरी इज जनरेटेड. हियर 1 + 0 + 1 is 1 1 1 1 1. Okay, now this is the content of C and this is the content of A. So A, this is 1 and remaining all are 1 1 1 1 0. Okay, then here the content of Q is 0 0 0 1 will remain as it is. Now if we'll see the algorithm, here we have to check for the carry. Carry generate हुआ क्या? Yes, carry is generated. इफ़ कैरी इज जनरेटेड, अगर कैरी जनरेट होता है यस, तो क्या करेंगे? Q0 में 0 ऐड करेंगे. Q0 में 0 ऐड करेंगे मीन्स ये जो अननोन बिट था वो 0 रहेगा. अगर यहाँ पे कैरी सेट होता है तो यहाँ पे कैरी सेट हुआ है, इसके लिए इसको 0 किया. देन वन मोर थिंग, अगर Q0 में 0 सेट करते हैं तो फिर हमको एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सी ए इज इक्वस टू सी ए प्लस ऑफ एम. ठीक है, सी ए इज इक्वस टू सी ए प्लस ऑफ एम. कंटेंट ऑफ सी ए क्या है? दिस 1 1 2 3 4 5 0. ये सी ए के कंटेंट्स है. एंड प्लस एम का वैल्यू हमको पता है 4 × 0 1 1 1 2 3 4 1 1. परफॉर्म द एडिशन. 0 + 1 1 1 + 1 0. कैरी इज जनरेटेड. इट इज 0 0 0 एंड 0. फाइनली द कैरी इज जनरेटेड. फाइनल कैरी को डिस्कार्ड करेंगे हमेशा. डिस्कार्ड द फाइनल कैरी एंड राइट डाउन द सेम दिस 0 and 1. This is the value of C and the Q value will remain as it is, that is 0 0 0 1 0. ओके, क्या किया हमने इनिशियल स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में इनिशियली हमने क्या किया है? कंटेंट ऑफ सी 0, एक्यूमुलेटर के कंटेंट 0 थे, ये तो एल्गोरिथम से ही लिया है. जो क्यू के कंटेंट थे दैट इज 17, वो एज इट इज इसमें सब्स्टिट्यूट किया है. ठीक है, देन फिर देखो यहाँ पे एल्गोरिथम में क्या किया है.
फिर उसके बाद में लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है और सी इक्वल्स टू सी ए माइनस एम किया है। देखो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यहाँ पे एक स्पेस एम्प्टी हो गया है। फिर जब जैसे ही हमने लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद परफॉर्म क्या किया है, सी इक्वल्स टू सी ए माइनस ऑफ एम। तो सी इज इक्वल्स टू सी ए माइनस ऑफ एम हमारा ये आया, एज इट इज़ सब्स्टिट्यूट किया है और जीरो का वैल्यू यहाँ पे आया है Q0 में। कैरी जनरेट हुआ है, इसके लिए हमने Q0 में इंसर्ट किया है 0 और फिर से ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, सी इज इक्वल्स टू सी ए प्लस ऑफ एम। तो सी इज इक्वल्स टू सी ए प्लस ऑफ एम का ये एडिशन आया है, इसके लिए कैरी का बिट 0 है एंड ये हो गया फर्स्ट साइकिल में। अभी कितने साइकिल हम परफॉर्म करेंगे, हियर द वैल्यू ऑफ Q इज ऑफ 5 बिट, तो 5 साइकिल्स रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, 5 साइकिल्स रिक्वायर्ड रहेंगे। ये फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया हमारा। अभी देखो यहाँ पे सी इक्वल्स टू सी ए प्लस एम किया, अभी यहाँ पर आ गए, यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1। काउंट कितना है टोटल हमारा 5 बिट का, तो 5 माइनस 1 4 हो गया है। 4 इज ग्रेटर देन 0, यस होता है तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो परफॉर्म द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, इसमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, दिस 1 दिस 0 0 0 1 0 0 0 एंड ये 0 लास्ट का 0 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। फिर से वही स्टेप्स देखो, लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद में सी इक्वल्स टू सी ए माइनस ऑफ एम। सी ए का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है सी ए का, माइनस एम का वैल्यू हमको पता है 4 टाइम्स 1 0 1। इनका एडिशन परफॉर्म करो, क्या आता है, इट इज़ 1 1 1 1 1 1, ऑल आर 1। सो सब्स्टिट्यूट ऑल आर 1, 1 2 3 4 5 6 सारे 1 रहेंगे। ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगा 0 0 1 0। और फिर ये यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हुआ था, ठीक है, इसका वैल्यू कैसे मिलेगा हमको, एल्गोरिथम में देखो कैरी सेट हुआ है क्या, यस कैरी सेट हुआ है, यहाँ पे कैरी सेट हुआ है 1 हुआ है, मीन्स जब C1 होता है यस होता है तो Q0 में 0 इंसर्ट करेंगे, तो Q0 में 0 आ जाएगा। Q0 दिस इज Q0 लास्ट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ Q, दैट इज 0। नो ये 0 होने के बाद क्या करेंगे, वन मोर ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म, सी ए इज इक्वल्स टू सी ए प्लस ऑफ एम। सी ए का वैल्यू कितना है, ऑल आर वंस, 1 2 3 4 5 6 ऑल आर वंस, और इसमें प्लस एम का वैल्यू हमको पता है 0 0 0 0 1 1 प्लस एम का वैल्यू। परफॉर्म द एडिशन, 1 + 1 0, कैरी इज जनरेटेड, 1 1 1 इज 1 1, हियर 1 + 1 0 0 0 0। फाइनल कैरी को डिस्कार्ड करेंगे, फाइनल कैरी को डिस्कार्ड करेंगे। ये वैल्यू अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 दिस इज 0 0 0 1 0 एंड रिमेनिंग कंटेंट एज इट इज रखेंगे, 0 0 1 0 0। ओके, नाउ दिस इज द सेकेंड साइकिल इज कंप्लीटेड। सेकेंड साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी देखो काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट -1। पहले 5 था, फिर 4 हुआ, अब 3 हो जाएगा। 0 नहीं हुआ है तो फिर से साइकिल रिपीट होएगा। थर्ड स्टेप में आ जाओ, देखो काउंट इक्वल्स टू काउंट -1, 0 नहीं हुआ है, फिर से यहाँ पे आएंगे, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अभी फिर से हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, लेफ़्ट शिफ्ट होता है तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ओके ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 0, दिस 0 इज शिफ्टेड हियर, 0 0 1 0 0, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, और फाइनली जो 0 रहेगा कैरी का वो डिस्कार्ड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। उसके बाद में सी इक्वल्स टू सी ए माइनस ऑफ एम। सी ए का वैल्यू कितना है, सी ए का वैल्यू है 3 टाइम्स 0 सी ए का वैल्यू कितना है, 3 टाइम्स 0 1 0 0, 3 टाइम्स 0 1 0 0, और उसमें माइनस एम का वैल्यू हमको पता है, माइनस एम यहाँ पे देखो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 1 एंड 0, so it is 1 1 1 1 0 1, minus m is yes, perform the addition, 0 + 1 1 0, 1 + 1 0, carry is generated,
0 0 0 फाइनल कैरी डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आता है 0, यहाँ पर आएगा 0 0 0 0 0 1 एंड ये वैल्यू रहेगा 0 1 0 0 और फिर कैरी जनरेट हुआ क्या? यहाँ पर कैरी जनरेट नहीं हुआ है। कैरी जनरेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर कैरी जनरेट नहीं होता है, नो होता है, तो Q0 में 1 इंसर्ट करेंगे। तो Q0 दैट इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो यहाँ पर हमने नहीं बनाया था, वो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी जब ये 1 हो गया, Q0 1 हो गया, तो फिर से ही क्या जाएगा? काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1, 3 से अब 2 पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल पे आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द फोर्थ साइकिल। ठीक है, फोर्थ साइकिल में फिर से क्या करेंगे? फिर से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर, ये 0, ये 1 एंड दिस 0 इज हियर, 1 0 0 0 एंड 0। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस बन गया है। फिर सी ए इक्वल्स टू सी ए माइनस ऑफ 1। सी ए का वैल्यू हमको पता है 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 और माइनस एम का वैल्यू पता है, माइनस एम इज़ 4 टाइम्स 1 0 1, माइनस 1 इज 4 टाइम्स 1 0 1। परफॉर्म द subtraction, sorry addition, 0 plus 1 is 1, here it is 1 1 1 1 1, all are ones, so here it is 1 2 3 4 5 6, all are ones. Okay, here the value will be 1 0 0 1 will remain as it is. कैरी जनरेट हुआ है क्या? हाँ, कैरी जनरेट हुआ है। अगर कैरी जनरेट होता है क्या करेंगे? when कैरी इज सेट yes, so Q0 is equals to 0, Q0 का बिट 0 रहेगा और फिर से हम क्या करेंगे? सी ए इक्वल्स टू सी ए प्लस ऑफ एम परफॉर्म करेंगे। सी ए इक्वल्स टू सी ए प्लस ऑफ एम। सी ए का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 5 6, ऑल आर वंस, और प्लस एम का वैल्यू हमको पता है 1 2 3 4 टाइम्स 0 1 1। परफॉर्म द एडिशन, 1 + 1 0, कैरी इज जनरेटेड, 1 1 1 इज 1 1, देन 0 0 0 0, फाइनल कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा, फाइनल कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ 0 देन 0 0 0 1 0, हियर इट इज़ Q विल रिमेन एज इट इज़। ठीक है, फोर्थ स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी लास्ट स्टेप बचा है हमारा, फिफ्थ स्टेज। ठीक है, फिफ्थ स्टेज में क्या करेंगे? अगेन वी विल परफॉर्म द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 0 0, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0 1 0 0 और 0, फाइनल 1 निकल जाएगा और यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा सी ए इज इक्वल्स टू सी ए माइनस ऑफ एम। सी ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पे सी ए का वैल्यू है 0 0 0 1 0 1 और माइनस एम का वैल्यू हमको पता है 1 1 1 1 0 1। परफॉर्म द एडिशन, ये एडिशन कितना आता है? 1 + 1 0, कैरी जनरेट होता है, दिस 1 1 + 1 0, कैरी इज जनरेटेड, सो हियर इट इज 0 0 0, फाइनल कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा, फाइनल कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? 0 देन 0 0 0 1 0। ठीक है, और यहाँ पे 0 0 1 0 तो सेम रहेगा। कैरी जनरेट हुआ क्या? कैरी जनरेट नहीं हुआ है। कैरी जनरेट नहीं होगा तो Q0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कैरी जनरेट अगर नहीं होता है तो Q0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो Q0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ स्टेज पे हम स्टॉप करेंगे। टोटल बिट्स हमारे 5 थे। हमने इनिशियल स्टेज से लेके इनिशियल स्टेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे 5 साइकिल्स रिपीट किए। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। ठीक है, ये है ए। एक्यूमुलेटर में किसके कंटेंट है? एक्यूमुलेटर में है 1 0, ये देखो एक्यूमुलेटर में है 1 0। देन क्यू में क्या है? क्यू में है 1 0 1, क्यू में है 1 0 1। ठीक है, सो दिस 1 0 1 is nothing but 5 and 1 0 is nothing but 2. So our final answer is 5.2. 3 5s are 15, 3 5s are 15, so 5 and remainder 2, so 5.2. In this way we can perform the division with the help of restoring division algorithm. Thank you for watching the video.